कैलेंडर सिर्फ तारीखों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार के लक्ष्यों को दर्शाता है। इस वर्ष के कैलेंडर का थीम है स्वच्छ भारत, हरित भारत, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष 2 अक्टूबर से भारत भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ हर नागरिक को जोड़ने की कामना करता है 2015 का ये नया नवेला कैलेंडर। इसके साथ ही पर्यावरण के सरोकारों को भी दर्शाता है 2015 का कैलेंडर, जिसका आज लोकार्पण होना है। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे डीएवीपी के महानिदेशक श्री के गणेशन जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का पुष्पों से स्वागत करें। हम स्वागत करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी का तालियों की भरपूर गड़गड़ाहट के साथ। हम स्वागत करेंगे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का। हम स्वागत करेंगे सूचना और प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्का जी का। हम स्वागत करेंगे अपर सचिव श्री जेएस माथुर जी का। और हम अनुरोध करेंगे वरिष्ठ कलाकार बिंदु जी से कि डीएवीपी के महानिदेशक श्री के गणेशन जी का भी पुष्पों से स्वागत करें। और स्वागत भाषण के लिए यहां पर आमंत्रित करेंगे डीएवीपी के महानिदेशक श्री के गणेशन जी को। Respected Honorable Minister of Information and Broadcasting, respected Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, respected Secretary Sir, respected Additional Secretary, media heads, senior colleagues, friends and friends from the media. It's a pleasure and privilege for all of us in DAVP, sir, to have you with us today on this auspicious occasion of the calendar release function. A few words about the calendar, sir. It is unique and distinct. There are two calendars to be released today. One is the traditional and conventional calendar. The other one is the digital version of the calendar. For your kind information, sir, both these versions have been worked out meticulously, and the digital version is full and in-house development thanks to the active support and endeavor of the NIC team. I would also like to extend my thanks to Press Information Bureau, AIR, DD News, PMO, Ministry of Information Broadcasting New Media Wing. So this has culminated after long months of relentless and tireless discussion and monitoring and approving of various issues and themes related with the calendar in the morning meeting chaired by our beloved Secretary Shri Bimal Julka ji. He has taken it at a very high level from an ordinary calendar launch to one which contains a digital version also. Sir, in our ministry, as you may be kindly aware, every day morning we have a 9 o'clock meeting which is frequented by Honorable Minister of State for I&B whenever he gets an occasion, in which all media heads and representatives from various media units discuss threadbare various strategies of campaigns and publicities. Calendar 2015, no doubt, was an intense subject of design, sir. So we are extremely thankful to Secretary I&B and his team for having supported us throughout the development process, sir. Sir, the theme of this year's calendar is based on the clarion call by our Honorable Prime Minister on Swachh Bharat and Swachhata in India. So in tune with his directions, we have resolved to produce the calendar on the theme Clean India and Green India. And the photographs have been chosen from across the length and breadth of the country. And the digital version
which is getting launched today, is also in sync with the theme of Clean India and Green India. And last but not the least, a word about our team in DAVP, sir. We have evolved as a 360-degree solution agency for various client ministries, and our client servicing has touched a new high. Last financial year, sir, we closed our business with over 1,300 crore rupees. And this year, we expect more to be done, sir. We, sir, under the able guidance of the Honorable MIB, Honorable MOS, the Secretary INB, and the entire Secretariat in the Ministry of Information and Broadcasting, we are optimistic that the team in DAVP will scale further new heights and peaks, not only in the days to come, but also in the years, months and years to come. Thank you, sir. धन्यवाद गणेशन जी। और अब हम अनुरोध करेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी से कि भारत सरकार के वर्ष 2015 के कैलेंडर का लोकार्पण करें। – 2015 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये भारत सरकार का 2015 का कैलेंडर ये कैलेंडर अब आपके सामने प्रस्तुत है और ये भारत सरकार का कैलेंडर जिसे डीएवीपी ने प्रकाशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जेटली जी, आज इस विशिष्ट मौके पर आपने इसका लोकार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नजर हम डालेंगे 2015 के कैलेंडर पर जिसका थीम है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। हम शुरुआत करेंगे जनवरी माह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष 2 अक्टूबर से प्रारंभ किए गए देशव्यापी स्वच्छता अभियान को दर्शा रहा है जनवरी माह। फरवरी स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत को दिखाता है फरवरी। मार्च नदियों को स्वच्छ करने के मिशन को दिखा रहा है मार्च। साबरमती नदी की तरह देश की बाकी नदियों को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। अप्रैल स्वच्छ अस्पताल स्वस्थ भारत की परिकल्पना को दर्शा रहा है अप्रैल। मई रेलवे द्वारा स्वच्छ ट्रेनें और स्वच्छ प्लेटफॉर्म अभियान को दिखा रहा है मई महीना। जून नमामि गंगे अभियान के तहत स्वच्छ गंगा के मिशन पर आधारित है जून माह। जुलाई स्वच्छ भारत मिशन में जन भागीदारी को दर्शाता है जुलाई माह। अगस्त ग्रामीण भारत में गांव में साफ सफाई के अभियान को दिखाता है अगस्त माह। सितंबर ऊर्जा के अनंत स्रोत और सौर ऊर्जा को दर्शा रहा है सितंबर माह। अक्टूबर पर्वतीय और तटीय इलाकों में प्रदूषण मुक्त पवन ऊर्जा को दिखाता है अक्टूबर माह। नवंबर भारत की सिरमौर हिमालय पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को दर्शाता है नवंबर माह। दिसंबर वन्य जीव संरक्षण को दिखा रहा है दिसंबर माह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के आह्वान से प्रेरित होकर 2015 से हम भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये एक मोबाइल ऐप है जिसका आज लोकार्पण करेंगे। हम निवेदन करेंगे एक बार फिर सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी से कि डिजिटल कैलेंडर मोबाइल ऐप का लॉन्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक नजर डालें इस डिजिटल कैलेंडर पर भी। इसकी शुरुआत भारत सरकार के कैलेंडर से। आप यहां पर क्लिक कर किसी भी दिन के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। आप इसके माध्यम से हर महीने पर भी जा सकते हैं। इसके आगे है इवेंट्स।
यहां क्लिक करने पर आप भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के डिटेल्स देख पाएंगे। इसके आगे है पीआईबी की प्रेस रिलीजेस। इसे क्लिक करने पर आप इसके भी डिटेल्स देख सकते हैं। आप चाहें तो पीएमओ ट्वीट्स पर भी जा सकते हैं। यहां लेटेस्ट 5 पीएमओ ट्वीट्स को देखा जा सकता है। आप चाहें तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube पर जाकर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की वीडियो क्लिप्स को भी देख सकते हैं। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन। मेरे मित्र सहयोगी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, सेक्रेटरी आईएनबी डीएवीपी से गणेशन जी और मित्रों, वैसे तो आज का सब कार्यक्रम एक औपचारिकता है, लेकिन एक सुखद औपचारिकता है। हर वर्ष डीएवीपी अगले वर्ष का कैलेंडर रिलीज करता है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर होता है और केवल सरकार में नहीं, सरकार के बाहर भी इस कैलेंडर की बहुत बड़ी स्वीकृति होती है। लेकिन इस वर्ष का कार्यक्रम थोड़ा सा भिन्न है। सरकार के 2 मेन स्ट्रीम कार्यक्रम ऐसे हैं। इस वर्ष उन दोनों का कन्वर्जेंस इस कैलेंडर में है। पहला एक सामाजिक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत का, और इसलिए वो कार्यक्रम इस कैलेंडर के विजुअल्स में रिफ्लेक्टेड है। हर माह के साथ स्वच्छ भारत का एक संदेश है। जहां जहां ये कैलेंडर दिखेगा, वहां वहां ये स्थायी रूप से स्वच्छ भारत का एक संदेश फैलाएगा। और मुझे विश्वास है कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक दूसरा कार्यक्रम भी है डिजिटल इंडिया का। वो एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, इकोनॉमिक प्रोग्राम है सरकार का, और इसलिए इस बार उसकी कन्वर्जेंस भी है कि वही कैलेंडर एक डिजिटल स्वरूप में भी उपलब्ध होगा। अब डिजिटल स्वरूप में भारत सरकार का कैलेंडर उपलब्ध होता है तो कैलेंडर की पूरी कल्पना बदल जाती है। वो कैलेंडर का आपको खरीदना नहीं पड़ता, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाता है। वो 24 घंटे आपकी जेब में रह सकता है। और उस कैलेंडर के साथ साथ अलग एप्लीकेशंस जो हैं, जो अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बतलाई गई कि आपको सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की, विभिन्न विभागों की, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार की, पीआईबी की अलग अलग समाचारों की, उसकी जानकारी भी उपलब्ध होती है। मुझे लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आगे इसी प्रकार से बढ़ती रही तो वार्षिक कैलेंडर के स्थान पर शायद पूरे युग का कैलेंडर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। और ये एक स्वाभाविक है कि कोई टेक्नोलॉजी को डिफाई नहीं कर सकता। उसका जितना अधिक प्रयोग होगा, समाज को उतना लाभ होगा। और इसलिए हम उस मध्यम मार्ग में हैं जहां कन्वेंशनल कैलेंडर और टेक्नोलॉजिकल कैलेंडर दोनों की उपलब्धि इस वर्ष से आरंभ हुई है। डीएवीपी का एक ये फ्लैगशिप कार्यक्रम रहता है।
डीएवीपी केवल सरकार के कार्यक्रमों को प्रचलित करने का एक माध्यम नहीं है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी डीएवीपी के पीछे रहता है और इसलिए उनकी एक स्किल, एक कला इसमें बढ़ती जा रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती जा रही है। मैं डीएवीपी को, उनके अधिकारियों को, डायरेक्टर्स को, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कन्वेंशनल और फ्यूचरिस्टिक इन दोनों का मेल करके डीएवीपी इस काम को और आगे बढ़ाता रहेगा। डीएवीपी का हार्दिक अभिनंदन और आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जेटली जी। और इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन से पहले हम सूचना प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी का, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का, सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय श्री बिमल जुल्का जी का और अपर सचिव श्री जेएस माथुर जी का, आप सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। 2015 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सभी जलपान के लिए सादर आमंत्रित हैं।